Yesterday we were discussing something about the gamma ray spectroscopy or the Mossbauer spectroscopy. In a nutshell, what was it? It is the gamma ray emission by a certain heavy nuclei and its consequent reabsorption. That recorded over the spectra is simply termed as the gamma ray spectroscopy or Mossbauer spectra. The most widely discussed case in the Mossbauer spectroscopy is of the iron. Not all nuclei they are Mossbauer active. Only certain elements in the periodic table they are NMR active. It includes all blocks, S block, D block, F block as well as P block. What all S block elements not included, all D block are not included, and all F and P block are not included. Only certain elements. What were the requirements regarding the gamma ray spectroscopy? It was that from where the excited nuclei that is formed, which is going to emit the gamma ray, the half-life of that particular isotope or element, it should be much more. It should be, if you count for the days, it should be in the weeks half-life. Why? Because a general Mossbauer spectra, it takes time of a few minutes to hours. So if it is emitting a gamma ray continuously or it is producing excited nuclei continuously, it will emit the gamma ray and that will hamper the process of measurement of absorption as well as emission of that particular gamma ray. So that particular nuclei from where the excited nuclei is formed, that should have more half-life or larger or longer half-life. Then whatever the excited nuclei is formed which is going to emit the gamma ray, that nuclei must rapidly reverse to the ground state, emitting a low energy gamma radiation, not high energy gamma radiation. So these were some primary requirements for the gamma ray spectroscopy. Here it is shown that cobalt nucleus, it captures the electron and consequently it changes into iron nuclei that is formed in the excited state. This iron nuclei further changes to the ground state by emitting a gamma ray. So that is the emission of the gamma ray. If it is subsequently absorbed by another nuclei, then that nuclei get excited. So that whole process is being included in the gamma ray spectroscopy. Let us have the further detailed discussion of the gamma ray spectroscopy as well as principle involved in the gamma ray spectroscopy. Whenever there is a emission of particular photon from the nuclei, that photon is having very much high energy because gamma rays, the energy of the gamma rays is much more than the another part of the spectra. Whenever such a high radiation is produced from a nuclei or emitted from a nuclei, then that nuclei is having a recoil. Now what is this word recoil? तो ये जनरल टर्म है. जैसे कोई गन फायर करता है तो उसमें से बुलेट जो है, हाई एनर्जी बुलेट, वो काफी स्पीड से जो वो आगे की तरफ ट्रेवल करता है, तो पीछे जो है वो गन का धक्का जो है वो किसको लगता है? शोल्डर को लगता है. दैट इज द रिकॉइल इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम. Here there is again production of the photon that is having very high energy. So such type of situation is there that there is a recoil that is being there in order to conserve the momentum. So see here, the production of this ray causes recoil or shift of the nuclei to the backward direction. The shift is not so simple because the energy of this photon is so high that this is having a speed of 100 meter per second. So that is a much more speed by which the nuclei is recoiled back.
So if we are saying that this photon is produced and that is again being you can say consumed or absorbed by the another nuclei, तो अगर एक मूविंग न्यूक्लियाई है तो मूविंग न्यूक्लियाई से जब एक फोटोन अमिट होगा तो फोटोन जो है वो मूविंग पार्टिकल से अमिट हो रहा है या मूविंग न्यूक्लियाई से अमिट हो रहा है, तो उसकी एनर्जी जो है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी. व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन देयर विल बी, जैसे कि आपने साउंड के बारे में, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जर्वर के साइड को कोई ट्रेन आ रही है तो उसकी जो साउंड है, जो उसकी आवाज है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर रिसीव हो रही है या एनर्जी ज्यादा रिसीव हो रही है. अगर वही ट्रेन किसी पर्टिकुलर पर्सन से डिस्टेंस पे जा रही है देन दैट साउंड बिकम्स लेस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और उसकी एनर्जी भी लो हो जाती है. तो जैसे ही ये एटम जो रिकॉयल होगा और इसकी कंसिक्वेंट एब्जॉर्प्शन होनी है तो इसकी एनर्जी स्टार्टिंग में जो फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी हायर होगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाता जाएगा वैसे वैसे जो है, यानी जैसे ये बैक मूव करता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी. सो इट मीन्स देर इज ए डॉपलर इफेक्ट. देर इज ए डॉपलर इफेक्ट. ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी कम से कम या फ्रीक्वेंसी जो है वो 10⁻18 के करीब आती है, और इसमें डॉपलर इफेक्ट जो है वो 10⁻12 के करीब जो है वो डॉपलर इफेक्ट जो है वो पॉसिबल है. तो इसमें जो है कि ये फोटोन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए तो इसको एब्जॉर्प्शन को फुलफिल करने के लिए हमें सोर्स जो है उसकी मूवमेंट करना पड़ती है, साथ साथ में जो है जो जहां ये अब्जॉर्प्शन होनी है उसकी मूवमेंट भी करना पड़ सकती है, दोनों मूव करना पड़ सकते हैं. सो फॉर द एब्जॉर्प्शन वी हैव टू मूव द सोर्स. एक्सपेरिमेंट में सोर्स को जो है वो मूव करना पड़ता है. सोर्स इज मूव्ड आइदर टुवर्ड्स द अब्जॉर्प्शन साइड, और यानी दूसरा सैंपल जो है जहां वो अब्जॉर्ब होगा, या इसको अवे मूव करते हैं. तो यहां नीचे शो किया हुआ मैंने, see how it is being moved. So suppose this is a one type of screw over which the particular nuclei that is being mounted, इसके ऊपर जो माउंट किया हुआ है पर्टिकुलर स्क्रू है ये, तो इसके साथ जो है हम एक एलसी सर्किट जो है वो अटैच कर देते हैं. मोस्टली एक इंडक्टेंस और कैपेसिटर जो है एलसी सर्किट में, तो एलसी सर्किट जो है वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है. तो इसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्थ आगे की तरफ और बैक साइड जो है ये मूव करेगा. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कैपेसिटी करंट पास करने से इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं, यानी किस मोशन में इसको मूव करना है सोर्स को, दैट कैन बी डन बाय कंट्रोलिंग द करंट पास थ्रू द सर्किट. सो दिस इज ए अरेंजमेंट दैट इज साइड वाइज, दैट इज ए सोर्स, सॉरी दैट इज ए सैंपल, जहां पर क्या होगा, जो गामा रे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और दैट इज द जीजर मुलर काउंटर, जीएम काउंटर बोलते हैं इसको. इसमें जो है वो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गामा रेज को काउंट कर सकते हैं, कितनी गामा रेज आ रही हैं. अगर ये सोर्स एब्जॉर्ब करता है तो गामा रे का काउंट कम हो जाएगा. अगर ये सोर्स एब्जॉर्ब नहीं करता है तो गामा रे का काउंट जो है वो उतना का उतना ही रहेगा. तो इसमें जो है वो मूवमेंट ऑफ सोर्स है इन ऑर्डर टू कंजर्व द और इन ऑर्डर टू गेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस गामा रे टू द सैंपल. तो इस तरीके से जो है वो अचीव किया जाता है. अदरवाइज इट इज लेस फिजिबल और अदरवाइज इट इज लेस पॉसिबल. दूसरा मोसवार ने जो है वो एक टिपिकल suggestion दिया है. That suggestion is that the source from where it is being emitted, it should be a solid source, it should not be a liquid or gaseous source. Reason being कि solid source में अगर particular nuclei कोई recoil भी होता है तो recoil होने से सारे के सारे क्रिस्टल के ऊपर जो है वो उस स्पीड का असर पड़ेगा. और अगर बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे होंगे, उसमें ये एटम्स इकट्ठे हैं, तो एक न्यूक्लियाई में अगर वो रिकॉयल आता है तो सारी की सारी एनर्जी उस क्रिस्टल में डिसिपेट हो जाएगी
और वो एक फोनॉन, एक कंपन के तौर पर जो है वो उस क्रिस्टल में जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल न्यूक्लियाई हो तो सिंगल न्यूक्लियाई जो है वो उसका रिकॉयल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो रे एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। So Mosvar has made feasible by suggesting that it should be a solid material from where solid source, not a liquid source or not it shouldn't be a gaseous source. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी स्पीड से ये रिकॉयल होगा तो रिकॉयल होने से जो है गामा रे जो है वो सैंपल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जिस पर्टिकुलर सैंपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दूसरी बात और है कि अगर ये भी आयरन का न्यूक्लियस है, एब्जॉर्बिंग भी आयरन का न्यूक्लियस है, तो दोनों में सिमिलरिटी है, तो सेम गामा रे एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी सी भी सैंपल में जो है वो डिस्टरबेंस है, व्हाट टाइप ऑफ डिस्टरबेंस? डिस्टरबेंस मीन्स एक भी आयरन है दूसरा भी आयरन है, लेकिन दूसरा आयरन तो है, सॉल्ट के तौर पर प्रेजेंट है या उसकी केमिकल एनवायरमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पर्टिकुलरली आयरन एंड द सैंपल इज नॉट simply iron but it is FeCN6 4 negative means it is hexacyano iron complex। तो है तो इसमें भी आयरन के न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस के साथ क्या लगा हुआ? साइनाइड आयन अटैच्ड है, तो इसकी केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होगी। ये क्या है? प्योर आयरन है, तो ये अलग जगह पे अब्जॉर्ब करेगा या इसकी अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो उसको भी अचीव करने के लिए जो है कि डॉपलर इफेक्ट की हेल्प ली जाती है, उसमें कम और ज्यादा एनर्जी की जा सकती है, क्योंकि जब भी इसकी मूवमेंट आगे की तरफ को होगी तो जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो मूवमेंट जीरो हो जाएगी, जब ये वापस फिर एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तब भी मूवमेंट जीरो हो जाएगी, और जब ये सेंटर से क्रॉस करेगा द मूवमेंट इज फोर्थ टुवार्ड द फ्रंट साइड टुवार्ड द बैक साइड। तो जब फ्रंट साइड में जाके रुक रहा है और बैक साइड में जाके फिर रुक रहा है तो दोनों साइड जो इसकी वेलोसिटी के हैं? जीरो है। लेकिन ये जैसे ही सेंटर को क्रॉस करेगा, एज इट विल क्रॉस द सेंटर ऑसिलेशन में, तो सेंटर में इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी, और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द पैसेज ऑफ करंट। तो इसमें आपके पास वेरिएशन ऑफ स्पीड भी आ रही है और वो सोर्स जो वो आगे पीछे भी हो रहा है, जिससे डॉपलर इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। डॉपलर इफेक्ट में जो है गामा रेज की जो एनर्जी है वो वेरी कर जाएगी। क्यों वेरी कर जाएगी? क्योंकि डॉपलर इफेक्ट से जो है अगर वो डिस्टेंस पे होगा तो डिफरेंट उसकी एनर्जी होगी, अगर उसके नियर बाई होगा तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। तो एक किस्म से उसी गामा रे से हम जो है वो रीअब्जॉर्प्शन उसकी जो है वो फिजिबल कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग वी आर मूविंग द सोर्स। किसकी मूवमेंट कर रहे हैं? सोर्स की मूवमेंट जो वो कर रहे हैं। तो ये रहा वो डॉपलर इफेक्ट, जैसे यहां पर शो किया हुआ मैंने। ये जैसे ही व्हीकल इसकी तरफ मूव करेगा तो इसकी देखो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो लिसनिंग की यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसकी ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो रे की ज्यादा है। लेकिन ये इससे अवे मूव कर रही है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी अलग है और ये फ्रीक्वेंसी अलग है। द डॉपलर शिफ्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर, that is given by the relation, it is v mu upon c। one is velocity of that particular source, then it is frequency, and it is the velocity of the light। then in the discussion it is isomer shift or it is termed as the chemical shift। chemical shift जो वो older name है, दो पर्टिकुलर नेम है वो आइसोमर शिफ्ट आता है। क्या आता है? वो आइसोमर शिफ्ट। अब इस आइसोमर शिफ्ट को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो मैं यहां आयरन की हेल्प से जो है वो अंडरस्टैंड आपको करवाता हूं कि आइसोमर शिफ्ट क्या होती है। अभी जो पीछे केस डिस्कस किया उसमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके लिए हमने डिस्कस कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर अब्जॉर्प्शन केवल आयरन के केस के लिए ही डिस्कस कर रहे थे। यहां पर मैं केस तो डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन ये स्पेक्ट्रा जो है वो FeCN6 और 4 नेगेटिव आयन का है। अब इसमें और आयरन में क्या डिफरेंस आया? इसमें यह डिफरेंस आया कि इसमें जो है इस आयरन न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो इसकी केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। क्या है? इसकी केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। और जो सिंपल आयरन होगा उसकी केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगी।
तो दोनों जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो ऑब्जॉर्व करेंगे। जो सिंपल वे है एंड इसको स्पेक्ट्रा को प्लॉट करने का, दैट इज प्लॉटेड इन बर्ड सेंस। काउंट्स पर सेकंड, जीजर मूलर काउंटर में कितनी काउंट्स पर सेकंड आ रही हैं उसको हम इस वाई एक्सिस की तरफ प्लॉट करते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, सोर्स को आप किस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसको यहां पर प्लॉट करते हैं। ये पॉजिटिव साइड है 0 से 5 तक ऑसिलेशन, और ये जो है नेगेटिव साइड है 0 to -5। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ये इस तरफ को मूवमेंट या परली साइड को मूवमेंट। इसके वेलोसिटी जो है वो पर्टिकुलर कितनी है, वो कहां पर जो वो अब्सॉर्ब कर रहा है वो देखा जा सकता है। तो 0 पर्टिकुलरली जो है दैट इज फॉर प्योर आयरन, जहां सेंटर में एब्जॉर्ब करेगा उसको कितनी वैल्यू पुटअप करेंगे हम, 0 वैल्यू पुटअप करेंगे। लेकिन इस कंप्लेक्स में हेक्सासाइनो आयरन जो 4 नेगेटिव कंप्लेक्स है, इसमें केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, तो ये -12 mm पर सेकंड की स्पीड पे जो है वो अब्सॉर्ब करता है। कितनी होती है सोर्स की स्पीड उस वक्त, -12 mm पर सेकंड। ये स्पीड जो है बहुत सॉफ्ट तरीके से जो है वो कंट्रोल होती है, क्योंकि 0.01 mm का भी अगर डिफरेंस रह जाए तो स्पेक्ट्रा अब्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है। तो बहुत प्रिसाइजली इसको जो है वो कंट्रोल्ड वे में जो है वो चेक करना पड़ता है कि कहां पर पर्टिकुलर सैंपल जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है और अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। द्वारा इसको मैं कंक्लूड करूंगा कि क्या डिस्कस किया और क्या डिस्कस नहीं किया। पहले ये बात आई कि गामा रे किसी सोर्स से एमिट हो रही है, ये भूल जाओ कि कहां से एमिट हुई। वो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। अगर वो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में है तो ऑब्वियसली रिवर्ट होगा और किसमें चेंज होगा, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो वो न्यूक्लियाई साथ में क्या कर रहा है, गामा रे एमिट कर रहा है। वही गामा रे सेम न्यूक्लियाई फर्दर जो है क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। ये बात तो मैंने डिस्कस की किसके लिए, केवल मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। उसके बाद डिस्कस ये किया कि जब भी कोई पर्टिकुलर सोर्स से गामा रे एमिट हो रही है तो गामा रे की एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उस वजह से वो एटम जो वो न्यूक्लियाई जो वो रिकॉइल कर रहा है, दैट इज पुश्ड बैक। क्यों, ये उसी गन के फायर की तरह है, जैसे बुलेट आगे की तरफ जाता है तो गन से पीछे की तरफ को जो है जो आदमी ने उसको होल्ड कर रखा उसको क्या लगता है, धक्का लगता है। तो इन द सेम सेंस देयर इज ए रिकॉइल ऑफ द न्यूक्लियाई। अगर रिकॉइलिंग न्यूक्लियाई से जो वो फोटोन एमिट हो रहा है देन देयर इज ए डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट का मतलब है कि थोड़ी दूर बाद उसकी एनर्जी जो कम हो जाएगी, और जब स्टार्ट हुआ था एमिट करना तो उसकी एनर्जी जो है, या जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था तब उस पॉइंट पे जो उसकी एनर्जी ज्यादा थी। तो ये गामा रे एब्जॉर्ब पर्टिकुलर सैंपल नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उस सोर्स को एक तो सॉलिड स्टेट में ले लो। सॉलिड स्टेट में लेने से क्या होगा कि जो भी रिकॉइल होगा वो एक न्यूक्लियाई के ऊपर नहीं, सारे के सारे क्रिस्टल के ऊपर आएगा, जिससे वो एक फोनॉन के तौर पर जो है वो उससे डिसिपेट हो जाएगा, एंड अप हो जाएगा, क्योंकि सारे सिस्टम, होल सिस्टम को वो रिकॉइल लगेगा। और एक एटम का रिकॉइल जो है वो सभी एटम्स या सभी न्यूक्लियाई के ऊपर जो है वो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, इकट्ठे होने से नील हो जाएगा। दूसरा, अगर हम पर्टिकुलर उसी एटम की बात करते हैं, उसी न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं जहां से एमिट हो रही है, तो वहां अब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर उसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो तो उसमें एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। वो किस पर्टिकुलर रेंज में जो है वो गामा रे को एब्जॉर्ब कर रहा है दैट विल वेरी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें सोर्स को जो है वो मूवमेंट करना पड़ती है। सोर्स के साथ जीजर मुलर काउंटर की भी मूवमेंट साथ साथ में होती है। जीजर मुलर काउंटर जो है वो कितनी गामा रेज वहां से एमिट हो रही है उनको काउंट करता है। जब पर्टिकुलर सोर्स जो है वो एमिट करेगा और सैंपल उसको एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन से क्या होगा कि जीएम काउंटर में नंबर ऑफ काउंट्स पर सेकंड जो है वो कम हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ काउंट्स पर सेकंड जो है वो अगर हम प्लॉट करें वर्सेस स्पीड ऑफ द सोर्स, सो दैट इज द मोसबार स्पेक्ट्रा। तो जो सोर्स है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में सेट कर देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे सेट करते हैं कि उसमें एक पर्टिकुलर
स्क्रू के ऊपर या किसी मटेरियल के ऊपर बाइंड करते हैं, जिसके ऊपर जो वो हम एलसी सर्किट लगा देते हैं। एलसी सर्किट जो वो एलसी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है करंट पास होने से। सो दैट सोर्स मूव्स टुवर्ड द फोर्थ एंड बैक, आगे और पीछे की तरफ जो वो पर्टिकुलर स्पीड से मूव करेगा। किस स्पीड से मूव करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच क्वांटिटी ऑफ करंट हैज बीन पास थ्रू दैट एलसी सर्किट। तो उससे जो है वो फ्रंट और उसकी बैक मूवमेंट है, जिसमें वो जब एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो जीरो मोशन है, और जब वो बिल्कुल सेंटर में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहां वेरिएशन ऑफ स्पीड आएगी। सो वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज देयर बिकॉज ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। तो उसकी अगर पर्टिकुलर एनवायरमेंट डिफरेंट भी है तो भी वो सैंपल क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, और नंबर ऑफ काउंट्स पर सेकंड जो वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो यहां मैंने बात की इस स्पेक्ट्रम में कि यहां पर देखो ये जीरो जो पोजीशन है, इस जीरो पोजीशन पे जो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन है, किसकी, आयरन की। तो यहां उसने अमिट तो की, लेकिन ये FeCN6 जिसकी केमिकल एनवायरमेंट डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट जगह पे जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट इज एब्जॉर्बिंग एट द सोर्स स्पीड 0.5 mm पर सेकेंड। कितने पे एब्जॉर्ब करेगा, 0.5 mm पर सेकेंड पे एब्जॉर्ब करेगा। यहां थोड़ा सा और जो है वो डिस्कशन है, दैट इज रिलेटेड विद द वैलेंस और द डिफरेंट केमिकल एनवायरमेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। इट इज फॉर द टिन। तो देखो यहां पर टिन 4 पॉजिटिव में 4 पॉजिटिव कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, कार्बन वाली फैमिली है 5s2 5p2। तो अगर 4 पॉजिटिव है तो इसमें भी 0 और इसमें भी 0 है। तो इसमें केमिकल शिफ्ट जो है या आइसोमर शिफ्ट जो वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर जिस रेंज की वो गामा रे अमिट करेगा, उसी रेंज की पर्टिकुलर गामा रे इस सैंपल में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरा, अगर उसमें p ऑर्बिटल्स हैं तो p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे होता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल जो वो न्यूक्लियस के नियर बाई है, तो ये जो है वो उसके न्यूक्लियस के नियर बाई होने की वजह से उसकी केमिकल डिफरेंट एनवायरमेंट क्या हो जाएगी, डिफर कर जाएगी। p d f ऑर्बिटल ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। क्या अफेक्ट करेगा, मेनली s, बिकॉज इट इज मच मोर नियर टू द न्यूक्लियस। टिन 4 कोवलेंट यानी टिन टेट्राक्लोराइड है, तो इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या है, 25% s करेक्टर इसमें है। इट मीन्स दैट विल अफेक्ट द केमिकल एनवायरमेंट ऑफ द टिन न्यूक्लियाई। सो वी आर गेटिंग ए केमिकल शिफ्ट ऑफ द 2.1 व्हेन इट इज SN2 पॉजिटिव। तो इस केस में जो है वो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने आए, एक ही आया, क्योंकि 4 कोवलेंट है तो एक s में और 3 किस में आएंगे, p में आएंगे। यहां पर कितने हो गए, 5 SN2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें, s में। दीज टू विद